Okay. Now we will do some mnemonics to learn the periodic table. So I'm requesting everyone, so please focus. First we will talk about, I hope screen is visible to you all. First we will talk about first group. In first chapter we have not did all, right? We did only 30 in first chapter. In this chapter we are going to do all. Okay. First group you can learn like Lena, ने, की, रब, से, फरियाद. Second group बेटी मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी. बैंगन, आलू, गाजर, in थाली. Voting group कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती. Please note it down, everyone. Please note it down. Once, please wait.
Tanishka, our timing is 6 p.m. exact. You have to refer now lecture recording. Please join by 6 p.m. If I will get timing last, I will explain. Okay, please write it down. Okay. Now next is about 15 group element. Nepal, Pakistan, Australia, Sub, Bhikhari. Sixteen group, office, style, से टीपो. ऑफिस स्टाइल से टीपो. BI is bismuth. 17 group. Hardik, I am getting message. Please wait for some time and write down the things which I am writing. T is tellurium. 17 group. First class biryani in auto. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. 18 group. हीना, नीना और करीना. जेरोक्स, रंगीन. हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. Please note it down. Pb is lead, Po is polonium, S is sulfur. Shreyas Bhatt, please wait for some time.
Premila Patil, no need to write down again. It's okay. I am not talking about radioactive element Aditya. Ra is radium. X is xenon. Yes, you have to remember this, Bhavin. Aditya, why are you not getting? That is recently discovered. I am not going to discuss about that. Aditya, please follow what I am doing. That's it. Hardik, you will see that in a different chapter. Yes, tell me, Riddhi. Sir, what is Faryad FR? Francium. Francium. Yes. Okay, thank you. Yes, Atharva, tell me. So what's PB? Plumbum, lead. Okay, so thank you. तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर पे सारे एलिमेंट के फुल फॉर्म खुद ट्राई करना. ठीक है. व्हाट इज बी ए, व्हाट इज आर ए, व्हाट इज एस आर. प्लीज राइट डाउन नेम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट by searching on any book. I hope you got what I'm saying. This is homework for you. Write down name of each and element by searching on book. Your PSFD module. Yes or tell me. सर आपने कुछ कहा था ना, अभी वो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है. हाँ वो जी लास्ट वाला, वो सब छोड़ो यार, ये लोग कुछ भी बोलते हैं. ओके सर. ठीक है. Yes Atharva, tell me. सर फॉर एग्जाम्पल FR फ्रांसियम में तो फ्रांस से डिस्कवर हुआ. हाँ कंट्री के ऊपर नाम है उसका, राइट. ओके सर, थैंक यू. और जर्मनी. Yes, yes, right. Yes, Shreyas, tell me. Shreyas Bhatt, tell me. सर यहाँ पे आईएन क्या है? क्या हुआ? ग्रुप सर मैंने बोला ना IN बेटा, क्या है? होमवर्क है आपके लिए. आपको ओके पेज की मॉड्यूल से सारे एलिमेंट के नाम लिखने हैं. ओके सर.
Yes, Swamil, tell me. सर जो 113, 114, 115 वो सब एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर के, वो सब 13, 14, 15 ग्रुप में नहीं आते? वो सब आते हैं लेकिन लर्न नहीं करना है. ओके सर, थैंक यू। Yes, Vidya, tell me. सर आपने वो 100 से ज्यादा जिनका नंबर है वो सब एलिमेंट्स के लिए आपने एक सिस्टम दिया है ना नेमिंग? क्या बोल रहे हो? हाँ, दिया है, राइट. हाँ सर. फर्स्ट चैप्टर में दिया है. हाँ. Yes, once, tell me. सर आप एक बार नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं प्लीज? हाँ, बोलो. थैंक यू सर। सिर्फ एक से नोट करना था सर। Yes, Arav, tell me. सर वो 3 to 12 ग्रुप ही करेंगे? हाँ, करेंगे ना, सब करेंगे. Yes, once, tell me. सॉरी सर, मैं अपना हैंड नीचे करना भूल गया। Yes, Shreyas, tell me. सर सेम सर, हैंड नीचे करना भूल गया। अथर्व, tell me. तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे? वो मेटल होंगे और उनके आउटर मोस्ट दो सेल जो होंगे इनकम्प्लीट होंगे. क्या सर, वापस बोलो। वो मेटल्स होंगे और उनके आउटर मोस्ट दो सेल विल बी इनकम्प्लीट. ओके सर, समझा। Okay. Now next is 3D series. साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस। कोई नहीं कुछ जानता। कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नेक्स्ट इज फोर डी सीरीज। Yes, Arya, right. They are noble gases. 4D series. Listen. यारी, जरा, निभा, मौत तक,
रुकावटें, राह, पड़े, आग में कूदना। सौर्य थोड़ा टाइम वेट कर लो प्लीज। एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबीमियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फाइव डी सीरीज, फाइव डी सीरीज, ला, हफ्ता, वर्ना रे, ओसामा, इधर, पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। लेंथनम, हॉफनियम, टेंटेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी। Yes, once tell me. Sir, can you please explain GD series again? GD सीरीज कहाँ है? सर ये सेकंड वाली 3D के बाद 4D सीरीज। 4D सीरीज। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़े आग में कूदना। ओके सर, थैंक यू। Okay. Yes, Isan, tell me. Sir, where are these 3D series, 4D series and 5D series? लास्ट टाइम पीरियोडिक टेबल मैंने ड्रॉ किया तो उसमें चेक कर लो। Okay, sir. ओके, Thank you. यस अथर्व, टेल मी। सर से थोड़ी देर के नोट डाउन करने दो सर, हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, यस श्रेयस, टेल मी। यस श्रेयस, टेल मी। श्रेयस, Sir, will you- can you please repeat the 5D series again? ला हफ्ता वरना रे, ओसामा इधर, पिटवाऊंगा और हंगामा होगा। Okay, sir. Thank you. यस देवश्री, टेल मी। सर होमवर्क में इनके भी फुल फॉर्म्स लिखने हैं क्या? हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू।
Yes, sorry, tell me. सर HF क्या है? ऑफनियम, तुम्हें होमवर्क मिला है, उसको फॉलो करो. ओके सर. Yes, Shreya, tell me. सर आप कौन से होमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने बोला कि जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ना, आपको उनके मतलब एक्चुअल नेम लिखने हैं. ओके सर. सर ठीक है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी इसलिए पूछा सर, सॉरी. या ओके ओके, नो इशू. Yes, once tell me. सर जो आपने 5D सीरीज में लास्ट वर्ड लिखा है होगा, उसका कोई सिंबल है? नहीं, कुछ नहीं, वो हंगामा और होगा दोनों को तुम एचजी लिख सकते हैं ना, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए मैंने होगा डाला है. ओके सर, थैंक यू. यस अथर्व, टेल मी. सर मैं हाथ नीचे करना भूल गया, सिर्फ ओके हो रहा है सर. सर रुको थोड़ा ओके, देर. लिख लो. ओके ओके, लिख लो. यस ईशान, टेल मी. ईशान, ईशान टेल मी. ईशान. Sir, sorry sir, I forgot to lower my hand. यस सॉरी यादव. चलो कोई बात नहीं, नो डाउट्स. ओके, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन. नो अभिक्षा, ल्यूटेटियम. ल्यूटेटियम मैं लेंथेनाइड सीरीज में बताता हूँ तुम्हें. ओके अभिक्षा, लेंथेनाइड सीरीज में करते हैं उसको. व्हाट हैपन हार्दिक? हार्दिक क्या हुआ? हार्दिक, ये सब क्वेश्चन क्या है यार? ये सब मतलब तुम जनरल नॉलेज के लिए चाहिए तो गूगल पे सर्च कर लेना. अब कहाँ पे डिस्कवर हुआ? इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ना अबाउट एवरी एलिमेंट. हार्दिक, आर यू गेटिंग? लेकिन रुदरफोर्ड के नाम से इसको नाम दिया, ये तो पता चल रहा है. यस सॉरी, वी विल डू फॉर लेंथेनाइड सीरीज. ठीक है, याद रखना कि हमने यहाँ पे 6D सीरीज नहीं किया है. वी आर नॉट डूइंग 6D सीरीज as well as actinoid because they are not important. Now we will do lanthanide series. We are not going to deal with 6D series as well as lanthanide, sorry, actinide. So please focus. I hope you have noted down this. Have you noted this? Tell me. Atharva, have you noted? Atharva, tell me. Okay, fine. Yes, once what happened? Once. अथर्व, वेर इज जेन? GEN कहाँ पे है अथर्व?
Okay, in the periodic law, some element number double letter basis. Okay, Atharva, you are asking about the gen in hydrogen. So actually, Atharva, gen means producer. Gen, gen means producer, Atharva. Aryan, that is not compulsory. Yes, Sivesh, you have to write down all the elements. Aro, please send me this on my personal chat. I will listen. Aro, please send me on my personal chat. Aro, are you listening? Okay, fine. Sorry, Yadav, like hydrogen, halogen, picogen, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब में जेन है ना, तो जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर. विद्युती ए का मतलब बिफोर, ए का मतलब बिफोर. आर्यन आईयूएम का मीनिंग नहीं है, दैट इज टू फॉर्म अ कंपाउंड ओनली. वी हैव डिस्कस इन द रूल्स इन द फर्स्ट चैप्टर. Okay, I hope you all have done with this. Now we are moving to next thing. Okay, everyone now please focus. Everyone please focus now. Now we are going to deal with some periodic properties. We will deal with periodic properties. First of all, we are going to discuss about atomic size. We will discuss about atomic size. Everyone please focus. Here there is a one term, that is atomic radius, that is distance from center of nucleus to outermost cell. Like if this is the nucleus and they are the cells, then this distance is atomic radius r. If they are bonded, if atoms are bonded like this, if atoms are bonded like this, then this is the nucleus of these atoms. You have to calculate the distance of nucleus, that is d. In this case, radius will be equal to d by 2. तो इस केस में इसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस. क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस. अगर यही बॉन्ड, जरा ध्यान देना, अगर यही बॉन्ड आयोनिक के केस में होता ऐसा कुछ,
then this is D. इस केस में जो R होता that is D by 2. इस केस में we will call it as ionic radius. In this case, this is the anion and this is cation. Ionic radius. Yes, sorry, tell me. सर वो कोवेलेंट रेडियस वाला डायग्राम फिर से समझाओगे? अगर एटम बॉन्डेड है तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकाल के उसको हाफ करना है. और सर ये आयोडिक रेडियस में एक एनायन और एक कैटायन होना चाहिए ना? हाँ, तभी तो आयंस बनेंगे ना. ओके सर. Yes, Riddhi, tell me. Sir, can you please explain the second iodic radius figure also? एक आयंस होगा, एक कैटायन होगा, राइट? अनायन कैटायन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल के उसको हाफ करना है. दैट इज विल गिव यू आयोनिक रेडियस. Okay, sir. यस देवश्री, टेल मी. सर अगर दो से ज्यादा एटम्स बॉन्ड हुए तो क्या होगा? उस केस में हम अलग अलग एटम का इंडिविजुअली निकालेंगे फिर. ओके सर, थैंक यू. यस रिद्धि, टेल मी. Sorry, sir, I forgot to lower my hand. प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन. इसको लिख लो. Pista, you have to calculate the distance of the nucleus in the bonded atom, then you have to divide it by 2 to know the radius. Bhavin, in one case they are overlapping और दूसरे केस में ओवरलैप नहीं हुआ है. प्लीज सी द डायग्राम. No, Ahmed, there are no examples. Yes, Atharva, tell me. सर जहाँ आपने आयन कैटायन लिखा है तो उसके नीचे आयोडिक रेडियस या आयोनिक रेडियस? आयोनिक रेडियस. मैंने क्या आयोनिक? लिखा है? आयोनिक. सॉरी. ओके सर, थैंक यू. Here it should be ionic radius. Ionic radius. Yes, both the orbits are same. Once covalent radius covalent compound में होगा, ionic radius ionic compound में होगा. Very simple difference. Yes, sorry, tell me. सर कोवेलेंट रेडियस में वो दो एटम्स कंबाइन है ना? हाँ. ओके सर. Have you noted it down? Please tell me.
Okay, very good. Okay, fine. Now we are going to see how the atomic size will increase or decrease in periodic table, and that is known as trends. So first we will talk about on moving top to bottom in periodic table. Top to bottom in periodic table, or you can say down the group. ठीक है, जरा यहाँ पे फोकस करना ध्यान से सभी लोग। देखो अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो सेल नंबर बढ़ेगा। इफ दिस इज द फर्स्ट, आई होप यू आर गेटिंग। टॉप टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। सो टेल मी व्हाट अबाउट रेडियस? व्हाट अबाउट रेडियस? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, राइट, वेरी गुड। सो टॉप टू बॉटम आने पे सेल नंबर बढ़ते हैं, सो रेडियस विल इंक्रीज, वेरी गुड। याद रखना पूरे चैप्टर में मैंने अगर अपवर्ड एरो दिखाया इट मींस इंक्रीजेस, और डाउनवर्ड एरो दिखाया इट मींस डिक्रीजेस। सो टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेस। नाउ फोकस, if moving from left to right, left to right, or you can say across the period, across the period, जरा ध्यान देना। मान लो अगर मैं सेकंड पीरियड में मूव कर रहा हूं, सेकंड पीरियड, in second period there would be only 2 cells, but as I will move there will be number of electron will increase. This is the first electron, now one more electron, second electron, third electron, fourth electron. Electron will increase but number of cell will remain same. Please focus on the statement what I'm saying. Number of cell will remain same, but inside that cell number of electron will increase. On the same side, number of protons inside the nucleus will increase. So you can see there will be more attraction between nucleus and these electrons. There will be more attraction between this nucleus and electron. अगर attraction ज्यादा होगा, then you can see this orbit will come closer to the nucleus. This orbit will come closer to the nucleus. So you can see size will decrease. Size will decrease. I am explaining again. Top to bottom आने पे number of cell increases. If number of cell will increase, then atomic size will definitely increase. On moving left to right, number of cell remain constant, but number of electron in that cell continuously goes on increasing. On the same side, number of protons also increases, so there will be more attraction between the nucleus and the electron, so size will decrease. Yes, Vidhi, tell me. सर ये जो चेंज होगा लेफ्ट टू राइट में अक्रॉस द पीरियड का, वो कितना होगा? मतलब इज इट एक्चुअली मतलब इतना कम, बहुत कम होगा कि एक्चुअली मैटर करता है? मैटर करता है। Yes, Atharva, tell me.
सर आपने जो रिसेंटली जो बोला है ना लेफ्ट टू राइट जाएगा रेडियस पर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वापस एक्सप्लेन करो ना सर। अभी प्रोटॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, राइट? हाँ तो उनके बीच अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगी। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके सर, थैंक यू। Please note it down, everyone. Yes, Shreya, tell me. सर वो आपके पास वो पिछला वाला स्लाइड है क्या एक बार? क्या हो गया? वो सर मैं नोट नहीं कर पाई थी, वो पता नहीं क्यों स्क्रीन वाज टू ठीक है, मैं मच लास्ट में ब्लर। दिखाता हूँ सारे स्लाइड। ओके, अच्छा ठीक है, हाँ थैंक यू सर। done with this? Okay, now please focus. If I am talking about cation, neutral atom or anion, then size of anion is largest, then neutral atom, then cation. For example, if I am talking about Na plus and Na, so Na की साइज ज्यादा होगी. Actually this is cation and this is neutral atom. At the same time, if I am talking about Cl and Cl minus, then Cl minus की साइज ज्यादा होगी. This is anion and this is neutral atom. Please note it down. नोट कर लो इसे सब लोग. This is about size only. I am talking about size only. Yes, Shreyas, tell me. Sir, but what is the proof of it? Sir, means why exactly does the cation become अगर smaller than इलेक्ट्रॉन its निकाल लोगे तो साइज छोटी हो जाएगी ना. वेरी सिंपल. Okay, sir. हाँ, sorry. इसके वजह से okay. Sorry, sir. Thank you. Okay, Sudhanshu, don't worry, I will show. Yes, Arav, tell me. सर अगर हमने कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया
सर तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फिर वो बड़ा होना चाहिए ना रेडियस। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो रेडियस ही ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा ना, फिर तो दूसरे ऑर्बिट में चले जाओगे जो न्यूक्लियस के पास होगा। सर लेकिन अगर मतलब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब आउटर मोशन में एक हाँ, इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं भी अगर हुआ तो उसमें भी तो sp-df ऑर्बिटल्स होंगे ना, हमने देखा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यस सर। तो पास में ही होंगे ना फिर। और सर लेकिन फिर अट्रैक्शन कम होगा तो वो बाहर भी चले जाएंगे ना। अट्रैक्शन कैसे कम होगा? जिस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया फिर हम उसकी बात नहीं करेंगे, जो बचे हुए हैं उसकी बात करेंगे ना हम। अच्छा सर, और ये सारे एक ही एलिमेंट के होंगे ना, मतलब हाँ, एक ही एलिमेंट, राइट राइट, एक ही एलिमेंट। थैंक यू सर। यस श्रेयस, टेल मी। Sir, but the only element that satisfies for cation, neutral atom and anion is only hydrogen, no? What? Sir, एक ही एलिमेंट जो तीनों मतलब बन सकता है, कैटायन, न्यूट्रल एटम और एनायन, वो हाइड्रोजन ही है ना? सर और कोई है? यस यस, राइट राइट राइट। सर इज देयर एनी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने पढ़ा हुआ है ना, लेकिन हेलो, हाँ तो ऑक्सीजन भी तो +2 बना सकता है। हाँ हाँ, ओके सर, सुपर ऑक्सीजन। Okay, now next is yes अथर्व, टेल मी। सर अगर नाइट्रोजन और शायद नाइट्रोजन पर एनायन है और क्लोरीन भी एनायन है, तो फिर साइज के हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन की रेडियस ज्यादा रहेगी ना? नहीं, क्लोरीन की ज्यादा होगी, टॉप टू बॉटम। ठीक है, समझा सर, थैंक यू। Yes Vishal, tell me. Sir, could you please show the previous slide? Yes, I will show all the slide at the end. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, everyone. Now, please focus on next thing. That is, if I am talking about isoelectronic species, isoelectronic species. In this case, atomic size would be inversely proportional to atomic number. Atomic number. For example, if I am talking about Na plus and Mg2 plus, can you tell me the atomic size? This also consists of 10 electron. This also has 10 electron. Atomic number here Z equal to 11, here Z equal to 12. So atomic size is inversely proportional to atomic number. So you can directly say that atomic number is lower, then atomic size would be higher. So this will have higher atomic size. Number of electron is constant, Satvik. You can see in the page. Now please see, tell me, compare Arnav, अगर atomic number of electron same है, then atomic size उसका बड़ा होगा, जिसका atomic number छोटा होगा. Very simple. Now please focus. Okay, everyone, I am explaining again. Please focus. If number of electrons are same,
then atomic size is inversely proportional to atomic number. अगर atomic number कम होगा तो atomic size ज्यादा होगी. That's it. Atomic number कम, atomic size ज्यादा. For example, compare the atomic size of Na plus, Mg2 plus, N3 minus, O2 minus, F minus. Please tell me the answer, everyone. Please tell me the answer. All consist of 10 electrons. 10 electron. 10 electron. But atomic size, that is Z. Z equal to 11, Z equal to 12, Z equal to 7, Z equal to 8, Z equal to 9. Very simple concept. Very simple concept. Just जिसका atomic number बड़ा होगा उसकी atomic size छोटी होगी. That's it. Okay, wait. I'm telling you the answer. Answer would be N3 minus, O2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus. This is the answer. Yes, once tell me. Sir, I want to ask that ये equation कैसे आया? कैसे आया वो जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करता है, जो अभी सिलेबस में नहीं. हम स्लेटर रूल वगैरह नेक्स्ट ईयर करेंगे. सर मतलब ऐसा हुआ ना, अगर वो जो एटॉमिक नंबर यानी Z वो जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, अगर हम हाँ उसे राइट, उसके कम वजह कर से हुआ. देंगे उसी तो को बोलते हैं जेड इफेक्टिव. हाँ अट्रैक्शन कम इफेक्टिव हो न्यूक्लियर जाएगा. चार्ज ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन न्यूक्लियस. ओके सर, थैंक यू. यस अथर्व, टेल मी. सर अगर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो Na क्यों लिखा है, Na प्लस क्यों नहीं? हेलो क्या सर. बोल रहे हो? हाँ यस टेल सर मी. अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो हाँ, फिर उसमें से अगर एलिमेंट्स सिर्फ Na क्यों लिखा है, उनके ऊपर चार्जेस क्यों नहीं लिखे हैं? they are neutral elements ना. We are not talking about charge species. जो 4 स्पीसीज में अगर वो मतलब टेबल में डाल सकते तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. चार्ज स्पीसीज तब बनते हैं जब उसमें हम इलेक्ट्रॉन को एंटर करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे. लेकिन जिस फॉर्म में वो मिलते हैं वो चार्ज फॉर्म में नहीं मिलते हैं ना नेचर में. अच्छा ठीक है सर, समझा. Om Singh, you are not connected to audio. Yes, Devsri, tell me. So what is isoelectronic? जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Okay, sir. Thank you. Yes sir, please tell me. सर अगर ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं होंगी तो कैसे निकालेंगे? बाकी सारे रूल लगा लो जो मैंने बताया, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, कैटायन, अनायन, न्यूट्रल एटम. अच्छा सर, ठीक है.
Yes, Arpit, tell me. Arpit. Once, what are you asking? I'm not getting. Isoelectronic means same number of electrons. Like Na plus में 10 electrons हैं, Mg plus 2 में 10 electrons हैं, Al plus 3 में 10 electrons हैं. So they are isoelectronic. Have you noted it down? Have you noted? Tell me. Okay. Yes, Atharva, tell me. सर गलती से हाथ ऊपर किया सर, सॉरी. Okay, now focus. जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट्स have larger size due to inter electronic repulsion. देखो टॉप टू बॉटम जाने पे अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैंने लिया क्लोरीन और यहाँ पे लिया आर्गन, ठीक है. तो टॉप टू सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीजेस. तो एक्चुअल में ऑर्डर कैसा होना चाहिए? लाइक दिस, बट ऑर्डर इज लाइक दिस. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर एंड दिस इज द रॉन्ग ऑर्डर. बिकॉज जैसे ही हम नोबल गैसेस की बात करेंगे, अगर मैं नोबल गैसेस की बात करूंगा तो प्लीज फोकस. Am I audible? If I am talking about noble gases, then there would be inter-electronic repulsion. अगर मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन की, तो आर्गन में there are electrons, like तो इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगी. इन द केस ऑफ आर्गन, इनके केस में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगी. दैट्स व्हाई इसका साइज बड़ा हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग अबाउट. In noble gases, larger size is possible due to inter-electronic repulsion. नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी साइज बड़ी हो जाएगी.
Is this clear now? Om Singh, very good question. What are noble gases? Noble gases are group 18 elements. Om Singh. Yes, Devsri, tell me. सर दो चीज है, पहला तो ये रूल सिर्फ नोबल गैसेस के लिए है ना? क्योंकि इनके ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल्ड अप है, राइट? सर और दूसरा कि ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सारे एटम्स में होता है ना? हाँ, होता तो सारे एटम में है. ओके सर, थैंक यू. Yes, Atharva, tell me. सर आपने जो बोला है तो हीलियम एक्सेप्शन हो सकती है ना? किसके लिए? साइज हीलियम. के लिए ना? हाँ. हाँ, सारे नोबल गैसेस एक्सेप्शन हो सकते हैं. नहीं सर, मतलब आप जैसा आपने कहा था कि जो साइज है ना, एटॉमिक साइज. हाँ, वही बोल रहा हूँ, सारे नोबल गैसेस साइज के लिए एक्सेप्शन ही है. उनकी साइज बड़ी होगी. हाँ सर, लेकिन अगर जैसा आपने कंपेयर किया ना क्लोरीन और आर्गन को, हाँ, तो ऐसे हीलियम के साथ अगर क्लोरीन कंपेयर किया जाए तो फिर क्लोरीन की साइज बड़ी हो सकती है ना? हीलियम और क्लोरीन को कंपेयर करोगे तो क्लोरीन बड़ा होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट सेम पीरियड एलिमेंट. अच्छा ठीक है सर, समझा. Ohm, iso means same. Iso meaning same. Ohm. Yes, once, right. Iso means same. Yes, sir, tell me. सर ये सिर्फ सेम पीरियड वालों के लिए ही है ना? हाँ, राइट. ओके सर. यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ. That is across period. Yes, Abhiksha, I will show at the end. Please wait. Done with this, everyone? Bhavin, I have told you to write down everything. Okay, very good. Now next periodic property is ionization, energy. कुछ लोग इसको एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और यू कैन आल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. Now please focus. Definition is the energy required to remove most loosely bonded electron
from an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy or energy. Now please focus. अगर कोई एटम पहले किसी एटम के साथ बॉन्डेड है तो फर्स्ट आई विल आइसोलेट दैट एटम. आई विल आइसोलेट दैट एटम. पहले मैं उसको अलग कर लूंगा, आइसोलेट करूंगा. आफ्टर दैट I will convert that atom into gaseous form. I will convert into gaseous form. उसको मैं gaseous form में convert कर लूंगा. उसके बाद उसके जो outer most cell में, please focus, जो outer most cell में इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए removal, उसको निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, जो एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. अब मैं आइसोलेट मतलब उसको अलग करना दूसरे एटम से, जिसके साथ वो कंबाइन है उससे मैं अलग कर दूंगा. उसके बाद उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. उसके बाद उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, that is ionization energy. So basically you can see here, this is energy is atom is gaining energy. So basically this is an endothermic process, right? Endothermic process. This is endothermic basically. So in this case, delta H electron gain enthalpy would be positive. डेल्टा एच मतलब होता है एंथैल्पी. डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी. यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट इज पॉजिटिव बिकॉज दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. एटम इज गेनिंग एनर्जी, सो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी वुड बी पॉजिटिव. प्लीज टेल मी इफ एनी डाउट. एटम को पहले अलग करना है, आइसोलेट करना है, उसके बाद गैस में कन्वर्ट करना है. गैस में से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. यस अथर्व, टेल मी. सर इसमें से सबसे वीक आयोनिक बॉन्ड कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड कहाँ पे है यहाँ पे? सर आपने अभी जो लिखा ना आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किस में है? तो हम भी ट्रेंड पढ़ेंगे ना, उसको कैसे कंपेयर करते हैं जैसे हमने साइज में किया है. सर अगर कम इलेक्ट्रॉन होगी तो फिर आइसोलेशन इजी रहेगा उसका. वो सब हम ट्रेंड में पढ़ने वाले हैं जैसे हमने एटॉमिक साइज में किया है. प्लीज वेट. ओके सर. यस रिद्धि मिश्रा, टेल मी. सर जो सबसे मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं? 1 2 3 कितने? कितने भी हो सकते हैं. मोस्टली तो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा. ओ, कितने भी हो सकते हैं? हाँ. ओके, थैंक यू. यस अर्नव, टेल मी. सर पिछला वाला जो था 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैव लार्जर साइज ड्यू टू इंटरनॉनिक रिपल्शन. राइट. हाँ, तो सर उसमें किसी ने तो पूछा था कि HCl में से Cl बड़ा क्यों होगा, तो सर मुझे नहीं समझा. तुम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो कि लेफ्ट टू राइट HCl में? टॉप टू बॉटम. हाँ, तो क्या होगा साइज? Cl बड़ा होगा. वेरी गुड. सर लेकिन तो इसमें तो लिखा है कि 18 ग्रुप एलिमेंट्स बड़े होंगे और मैंने ब्रैकेट में लिखा है अक्रॉस द पीरियड. ओके सर. ओके.
लेफ्ट टू हाँ राइट सर जाने थैंक पे। यू। यस देवश्री टेल मी। सर वो एंडोथर्मिक पार्ट है, वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जहां पे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक वो होता है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो डेल्टा एच वुड बी पॉजिटिव। ओके सर, थैंक यू। सात्विक व्हाट आर यू डूइंग? क्लोरीन कहाँ पे है, हाइड्रोजन कहाँ पे है, पोजीशन तो देखो एटलीस्ट, कितना नीचे है क्लोरीन, तो उसकी साइज तो ऑब्वियसली बड़ी होगी ना। टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज है सात्विक। यस भाविन, फॉर एक्सोथर्मिक डेल्टा एच इज नेगेटिव। Yes, Karthik, right. Valence shell has loosely bonded electrons, right? Please write it down, everyone. इसको लिख लो जरा. Please write it down. First, we have to isolate the atom. Then we will convert that atom into gaseous form. After, we will remove electron. The energy required to remove that electron will be called as ionization energy. Because energy is getting absorbed, so it is an endothermic process. Hence, delta H would be positive. आर्यन वर्मा, एंडोथर्मिक के लिए एनर्जी चेंज पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच वुड बी पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक। डेल्टा एच इज एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से दिखाते हैं एनर्जी। एनर्जी को केमिस्ट्री में डेल्टा एच से दिखाते हैं, दैट इज एनर्जी चेंज। After equal to it is written plus VE, that is positive. Plus VE, positive. Vidit, I am not getting which part you are talking about. Please raise your hand. Yes, Vidit, tell me. सर आयोनाइजेशन क्यों करते हैं? मुझे NaCl बनाना है मान लो, ठीक है? यस सर। तो Na को Na प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ। तो इलेक्ट्रॉन निकाले बिना कैसे होगा फिर? ओके सर। यस अथर्व, टेल मी। सो आयोनाइजेशन का यूज क्या है? अभी बताया ना, अगर NaCl बनाना है तो Na से Na प्लस बनाना पड़ेगा, राइट? हाँ। तो Na प्लस बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट टेल्स अबाउट, दैट इज गोइंग टू बी हैपन विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा ठीक है। Na से Na प्लस बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट विल टेल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके।
Sasank, please raise your hand. Because Shreya, energy is getting absorbed by the atom. You can see in the diagram, energy is getting absorbed, so it is endothermic process. जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक. फॉर एंडोथर्मिक डेल्टा एच इज पॉजिटिव, फॉर एक्सोथर्मिक डेल्टा एच इज नेगेटिव. यस देवश्री, टेल मी. सर डेल्टा एच में एच का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी होता है. सर लेकिन फिर वो एच क्यों लिया? एच एक्चुअली किसी दूसरे कंट्री के लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है एनर्जी. ओके सर, थैंक यू. Okay, I am showing you all the slides again. This is the first one about group 1, 2, 13 and 14. This is about next one, 15, 16, 17, 18. Three D series, 4D series, 5D series. Periodic properties, atomic size, covalent and ionic radius. Trends of the atomic size, top to bottom increases, left to right decreases. Cation, neutral atom, anion. Anion has greater size than neutral atom than cation. Isoelectronic species के केस में atomic size is inversely proportional to atomic number. 18 group element have larger size due to interelectronic repulsion across the period. Then we have done ionization energy. Yes, once tell me. सर मुझे पूछना था सर, आपने वो फिर डायरेक्टली आपने वो 13, 14, 15 ग्रुप का करवा लिया सर, वो बीच के ग्रुप्स का इम्पोर्टेंट नहीं होता है? 20 का हमने किया है ना, 3D सीरीज 3 to 12. सर उसके बाद भी एक सीरीज आएगी ना, जैसे 6D? हाँ 3D किया है, 4D किया है, 5D किया है. मैंने 6D नहीं कराया और और लैक्टेनाइड नहीं कराया. हाँ सर, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, अभी नहीं करना है वो सब. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. बाय सर. Okay. Thank you so much everyone for joining. I hope you enjoyed the class. Yes, once tell me. नो सॉरी सर, मैं हैंड नीचे करना भूल गया. Yes, Vishal. Sir, could you please show the 5th slide? Okay, wait. Are you talking about this one? Vishal. Vishal, this one? Yes, sir. Okay, please note it down. Yes, Amay, that is applicable to same element. Amay, that is applicable to same element. Okay, thank you so much everyone for joining. How we have done the mnemonics to learn the periodic
एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को लर्न करने के लिए निमोनिक्स किया था हमने। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।